وہ قدم قدم چلتا عین ان کے سامنے آ رکا تھا۔ پھر ان کا نرم مسکراتا چہرہ دیکھ کر اس کا اپنا چہرہ بھی انتہائی نرم پڑ گیا۔ بیٹھو، ہاتھ سے اسے صوفے کی جانب اشارہ کیا، پھر آگے بڑھ کر سامنے رکھے ٹیبل پر پڑی چائے بنانے لگے۔ ولی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ اصغر بتا رہا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے کافی پریشان تھے تم۔ خیریت ہے نا سب؟ انہوں نے کپ اس کے آگے رکھا تو اس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ آپ چائے بہت اچھی بناتے ہیں سر، بالکل اصغر جیسی۔ اس کی بات پر حسن مسکرائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ولی اتنی آسانی سے کچھ بھی یوں بتانے نہیں بیٹھ جاتا تھا۔ جانتا ہوں، آپ جیسا باپ ہوگا بیٹا بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ خیر تم کہو کیسے ہو؟ کام حویلی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ رہے تھے، پھر بھی ان کے انداز کی احتیاط بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے چائے سے ایک گھونٹ لیا، پھر کپ سامنے رکھ کر انہیں دیکھا۔ سب ٹھیک ہے سر، لیکن آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ سب ٹھیک ہے سر، لیکن آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ ہم ایسی جگہوں پر ایسے نہیں ملتے۔ یقیناً کچھ ایسا ہے جو ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ حسن کی مسکراتی نظریں جو اس کے چہرے پر جمی تھیں، ان پر بہت ہلکی سی چبھن اتری۔ عمل زمان کون ہے ولی؟ کیا پوچھا آپ نے؟ اسے لگا اس نے غلط سن لیا۔ بے یقینی سے آنکھیں کھولے وہ حسن کا اب کے انتہائی خوفناک حد تک سنجیدہ چہرہ لیے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا عمل زمان کون ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کی آواز کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ اپنے راز کا کھل جانا۔ اس کا وجود پل میں سنسنا اٹھا تھا۔ ہاشم نے اس کے سر پہ گویا دھماکہ ہوا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے حسن کا چہرہ تکتا ہوا سفید پڑتا جا رہا تھا۔ مجھے ہاشم نے بتایا کہ تم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو اور اس لڑکی کا نام ہے عمل زمان، شیخ زمان نظر کی بیٹی۔ اب بولو، کیا سچ ہے؟ کیا واقعی وہ لڑکی تمہاری زندگی میں، یا پھر یہ کوئی ٹریپ ہے ہاشم کو پھنسانے کا؟ وہ بہت سکون سے بولتے، اس کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب کسی جواب کا انتظار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم سے غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، غلطی کو سدھارو، اور جو تمہارے دشمن کے ہاتھ لگ گیا اسے واپس لو۔ ایسے کیسے؟ وہ اب تک بے یقینی سے شلسا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا ولی کہ انتقام کے سفر میں جب نکلتے نا تو کسی کو اپنی قربت نہیں دیا کرتے، کسی کو اپنی عادی نہیں بناتے، کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے، کیونکہ پھر موت کی صورت میں صرف آپ نہیں مرو گے بلکہ آپ کے ساتھ وہ بھی مرے گا جسے آپ نے خود کا عادی بنایا ہوا ہے۔ جانتے بھی ہو عادتیں کتنی جان لیوا ہوتی ہیں۔ آخر میں انہوں نے ترم سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ مگر خیر، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہاشم کو میں سنبھال لوں گا، تم اب جا کر سارے مسئلے کو سنبھالو، اور ایک بات میری یاد رکھنا۔ وہ رکے تو اس کا سارا وجود بھی ٹھہر گیا۔ ساکت سے نثاری آنکھیں حسن پر جمی تھیں۔ اب اس لڑکی سے کوسوں بلکہ میلوں دور رہو گے تم، اسے تکلیف دو گے، اس کے جھڑکو گے، اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آؤ گے۔ کوئی نرمی برتنے کی ضرورت نہیں اس معاملے میں، کیونکہ ذرا سی نرمی بہت سی زندگی کو عذاب کا گڑھا بنا سکتی ہے، چاہے پھر وہ اس لڑکی کی زندگی ہو یا تمہاری۔ سب راکھ کا ڈھیر بن کر ختم ہو جائے گا۔ اب وہ بہت آہستہ سے سرد آواز میں سے سمجھا رہے تھے، اور ولی ریت کی مانند پل پل ختم ہو رہا تھا۔ واپسی کا سارا راستہ اس کا وجود ساکت تھا، یوں لگتا تھا گویا اس کا سانس اب تک رکا ہوا ہے۔ چہرہ حد درجہ سفید پڑ رہا تھا اور ماتھے پر پریشانی کی بہت سی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب تک سارے کام اس کے طے کردہ تھے۔ زرعی زمین کا مسئلہ، ہاشم کی حسن شاہ سے دوستی، ہاشم اور حسین کا انجام، اسے سب طے کر رکھا تھا، سب کچھ طے شدہ تھا۔ مگر پھر اس سے غلطی کہاں ہوئی، کہاں چوکا وہ جو ہاشم اس کے حلق تک پہنچ گیا اور اسے اس بات کی خبر تک نہ ہوئی۔ اسے نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے، حد پار کر سکتا ہے وہ۔ اس نے عہد کیا تھا کہ اس جنگ میں کسی کو بھی اپنے کو کبھی حصہ دار نہیں بنائے گا، کسی کو بھی اس میں سب میں نہیں گھسیٹے گا، وہ کسی کو اس کی وجہ سے بے جا تکلیف نہیں ہوگی۔ مگر وہ غلط تھا، سب غلط ہو رہا تھا، سب بگڑ رہا تھا۔ عمل، یا خدا عمل! اس کا وجود ایک بار پھر زلزلوں کی زد میں آ رہا تھا۔ اسٹرنگ تھامے ہاتھوں کی سختی اور خوف سے سکڑتی سانسیں، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب عمل کو کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے تو کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو وہ کبھی سکون سے نہیں مر سکے گا، کبھی اپنی آنکھیں اس دنیا سے ثانی کے ساتھ بند نہیں کر سکے گا۔ لوگ جینے کا سوچا کرتے تھے، مگر اس کی ہر سوچ، ہر خیال، ہر تخیل میں اگر کوئی شے مشترکہ تھی تو وہ اس کی موت تھی۔ اس کی ہر سوچ سے موت سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مرے گا، اس سے مرنا ہوگا، یہی اس کا انجام ہے، یہی اس کا اختتام ہوگا۔ اگر وانگ سا تنہا رہ گیا تو ملے گی عمل اس سے کبھی نہیں، وہ جل یا بدر کسی تاریک قبر کا حصہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اس عمل کی زندگی کو معمول پر لانا ہوگا۔ اس کی زندگی اس کی وجہ سے تکلیف دہ بنی ہے، اسی کی وجہ سے وہ ساری مصیبت کا حصہ بنی ہے۔ کیسے وہ اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے؟ اس نے زور سے ہاتھ اسٹرنگ پر مارا۔ پریشانی اب غصے میں بدل رہی تھی، فرسٹریشن کا لاوا اب اندر بہت تیزی کے ساتھ ابلنے لگا تھا۔ اس کا دشمن اس کی سب سے بڑی کمزوری سے واقف تھا۔ اس کی کمزوری، ہاں وہ اس کی کمزوری تھی۔
इससे किसी ने अब तक इंसान रखा हुआ था तो वो अमल थी, नहीं तो हाँ, वो भी कब का जानवर बन जाता, वो भी हाशिम बन जाता, क्योंकि वो दोनों ही एक तस्वीर के दो रुख थे। वली और हाशिम एक ही किताब के दो सफ़े थे। अगर वो जानवर था तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इसे कोई मिला ही नहीं जो इसके अंदर के इंसान को इंसान रख सकता, मगर इसके पास अमल थी। वो जो पाकीज़ा सुबह की मानंद रोशन सी थी, बहती हुई जैसी नरमी सी इसकी वजह को तमानियत बख्शती थी। इसके अंदर जमी बर्फ़ को पिघला दिया करती थी। हाँ, वही तो थी, इसके अलावा और होकर भी कौन कौन हो सकता था भला? और इसने इसकी ज़िंदगी को मुश्किलात में फंसा दिया। इसको भड़कती आग के ध्यान पे लाहड़त खड़ा किया। हाशिम की दुश्मनी से तो बड़े-बड़े ज़ालिम लोग भी अपना पनाह तलब किया करते हैं। अगर जो इसने अमर को कोई नुकसान पहुँचाया तो इसकी कनपट्टियाँ उबल पड़ीं, दाँत सख्ती से जम गया, साँस बहुत तेज़ हो गया। गाड़ी की रफ़्तार हर गुज़रते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। वो कभी इसको कोई नुकसान नहीं होने देगा। वो कभी तक इस तक कुछ भी आने नहीं देगा। वो सब तबाह कर देगा, तहस-नहस कर देगा। अगर इसके अमल को किसी ने छुआ भी तो सारे रास्ते इसके अंदर एक शदीद जंग छिड़ रही थी। तेज़ी से दौड़ती गाड़ी रात की स्याही में अब डेरे की जानिब सफ़र कर रही थी। डेरे के बाहर पहुँचकर इसने तेज़-तेज़ कदमों से रविश को अबूर किया, फिर अंदर की जानिब भागता गया। इसे अभी कुछ काम करने थे। अंदर पहुँचकर इसने जल्दी-जल्दी कुछ नंबर डायल्स किए और तेज़ी के साथ हदायत देने लगा। इसकी पेशानी पर चमकता पसीना इस सारे अरसे में कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। चंद एक हिदायत देने के बाद इसने बहुत से फ़ोल्डर्स उठाकर सामने टेबल पर रखे। इसी पर इसका मोबाइल बजा तो वो एकदम चौंका। स्क्रीन पर सामान का नाम जगमगा रहा था, आज वलीमत था और वो यकीनन इसी को बुला रहे होंगे, मगर इसने फ़ोन ऑफ़ करके एक तरफ को डाल दिया। अभी वो किसी को भी कोई जवाब देने की पोज़ीशन में नहीं था। अभी इसे कुछ काम निपटाने थे, कुछ चलते चक्रों को उल्टा घुमाना था। हाँ, अभी इसे बहुत कुछ करना था। रात की स्याही में डूबा डेरा अजीब-सी वहशत का शिकार लगता था। अमल ने अपने सियाह रेशमी बालों को कांच के पीछे अरसा, फिर बेख्तियार बीजान की आवाज़ पर पलटी। वो इस वक्त सब्ज़ार पर किए गए वलीमे के इंतज़ामात को देख रही थी। मेहमानों की आमद-ओ-रफ़्त शुरू हो चुकी थी और दरवाज़े पे इज़्ज़ता मुलाज़िमिन मेहमानों की ज़ियाफ़त का सामान कर रहे थे। अमल तुम्हें सामिया बुला रही थी अंदर। जी बीजान, बस जा रही हूँ। वैसे भाभियाँ तैयार हो गईं। जाते-जाते इसने रुक कर पूछा तो बीजान ने इस बात में सर हिलाया और किसी खातून से मुस्कुराकर गले मिलने लगी। इसने गहरा साँस लिया और अंदर की जानिब बढ़ी। आज इसने मुकम्मल ऑफ वाइट रंग का लिबास ज़ेब तन रखा था और टखनों से ज़रा ऊंची कमीज़ के दामन पर बारीक बातों का मोतियों का काम चमक रहा था। बाकी का काम इसी गर्दन तक बंद गले पर जगमगा रहा था। नीचे चूड़ीदार सादा सा पजामा था और आस्तीनें हथेलियों तक चूड़ियों की सूरत तक आती थी। दुपट्टा एक जानिब कंधे पर डाला, सियाह रेशमी से बाल को कमर पर झूल रहे थे। जब कभी वो किसी लट को कान के पीछे अड़सती तो उसके कानों में लटके भारी से आवेज़ हलकुरे लेते नज़र आते। भाभी ने कमरे की जानिब बढ़ते हुए उसने एक पलकों को रुक कर खुद को ज़ेनों के इस पार लगे बड़े से आईने में देखा था। सियाह बालों के हाले में कैद इसका चेहरा दमक रहा था। शहद रंग आँखों की पलकें बहुत खूबसूरती के साथ मुड़ी थी और चेहरा तो मोम का बना लगता था। हाँ, मगर इस सब के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। अजीब-सी उदासी थी जिसने इसका इज़हार कर रखा था। वो यूँ ही चरन में खुद को शीशे में देखी गई। कहाँ है वो? आया क्यों नहीं अब तक? क्यों हमेशा ऐसा करता है वो? इतने बुरे इंसान से मोहब्बत क्यों की तुमने अमल? जैसे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं, तुमने इसके लिए खुद को क्या बना लिया है? इसने आँखों से चमकती हुई आँखों को उदासी से सामने आते नज़र आते अक्स में देखा। ये उदासी, ये बेवजह का बोझ, ये कसावत, ये सब क्या है? मैं तो एक बहुत खुशवकरम सी लड़की थी, हर लम्हे को खुशफहक होकर गुजारने वाली। फिर अब ये मुझे क्या होता जा रहा है? क्यों इसकी गैर मौजूदगी में दिल तड़पने लगता है? क्यों वो नज़रों से ओझल हो तो सांस तक लेने में दुश्वारी होने लगती है? इसकी उदासी सवा होने लगी थी। कुछ था जो इसे बेपनाह गमज़दा कर रहा था। क्या इसे खुद भी नहीं पता था? बहुत बुरे हो तुम वली अहमद, बहुत बुरे। अमल ज़मान को तुम बिल्कुल नहीं पसंद। आईने में खुद को देखती इसने वली को मुखातिब किया। फिर इसकी ऐसी बात पर इसका क्या जवाब होता? इसने पल भर को रुक कर सोचा, मुस्कुराकर सर झटकता। दर्द की एक ठेस उठी थी दिल में। इसे याद करके गहरा सांस लेकर इसने कदम भाभी के कमरे के जानिब फेरे। अंदर ब्यूटिशियन दोनों को तैयार कर रही थी। अमीन और शाज़िया का जोड़ा एक ही तर्ज का था, अलबत्ता दोनों के रंगों में फ़र्क था। इसने सलाम किया, फिर पास चली आई। तैयारी हो गई मुकम्मल। आईने के सामने लगी कुर्सी पर वो दोनों बैठी थी और ब्यूटिशियन पीछे खड़ी बस इनके सिंगार को आखिरी टच दे रही थी। जी, तैयारी हो चुकी है तकरीबन। आप वो चादर ले आए जो इन्हें पहनानी, ताकि हम दुपट्टे के साथ इसे भी टिका दें।
اس ने इस बात में सर हिलाकर रुख फेरा, फिर कमरे से बाहर चली आई। पी जान के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। वहाँ सामने सोफे पर दोनों चादरें थैली में पैक हुई पड़ी थी। इसे झुककर दोनों को उठाया, फिर दरवाज़ा बंद करती हुई बाहर निकल आई। सामिया कांता के साथ जीनों के पास तैयार सी खड़ी थी। इसने एक पल को रुक कर इन दोनों को देखा। कांता, सामिया प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे दोनों भाभीियों को लेकर लॉन के स्टेज तक जाना है। एक तो उनके ड्रेसेस का इतना भारी काम, ऊपर से फिर वो दो हैं, अकेले नहीं कर पाऊंगी मैं। सामिया और कांता ने मुस्कुराकर इसके साथ कदम बढ़ाए थे। फिर वो दोनों दुल्हनों को लेकर गेंदे के फूलों से सजे स्टेज तक लाए। लड़की वाले भी आ गए थे। अब बाजार खासा भरा भरा सा लग रहा था। खानदान वाले अब स्टेज पर गर्दन अकड़ाए बैठी लड़कियों की रस्म कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बख्तियार और निसार को लाकर बिठाया गया तो स्टेज पर गोया चांदनी उतर आई। सब दूर से बहुत मुकम्मल, बहुत खूबसूरत लग रहा था। दूर खड़ी अमल ने एक पल को फिर से अपनी नज़रें स्टेज से हटाकर गेट की जानिब फिरी, मगर वो आता तो नज़र आता ना, वो तो कहीं था ही नहीं। कुछ ही देर में इसे अर्जुमन और नाजिया स्टेज पर चढ़ती हुई नजर आई। जब से वली ने नाजिया की तबीयत साफ की थी, तब से नाजिया ने दोबारा रुख इस हवेली की जानिब करने की हिम्मत ही न की। और नफीस वो तो इसे इस दिन के बाद देखा ही नहीं था। न जाने वली ने क्या किया हो इसके साथ, सोचकर इसने बेसख्ता छेड़ी ली थी। कैसी हो अमल? कोई जानी पहचानी सी आवाज़, जिस पर इसने सरल से चेहरा घुमाकर पीछे खड़े शख्स को देखा। ऊंचा सा हाशिम सिया आंखों से मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था। तेल लगे कंधों तक आते बालों को इसने दोनों तरफ कानों के पीछे अड़स कर रखा था और अपने मखसूस हुलिये के बरस वो अच्छा खासा बेहतर लग रहा था। सफ़ेद कुर्ते पर बादामी शॉल कंधे पर डाले। मैं ठीक हूँ हाशिम भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, देखो सामने हो, तुम्हारे पेपर्स हो गए तुम्हारे बीएससी के। इसने मुश्किल मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। इसका हाशिम से ताल्लुक कभी भी बेतकल्लुफ़ वाला नहीं रहा था। इसके साथ अजीब गैर आरामदा सा महसूस अमल को हमेशा घेरता था। अभी वो अनकंफर्टेबल हुई थी। जी हाशिम भाई, हो गए हूँ। आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? आगे तो कुछ भी नहीं बाबा, इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं देंगे पढ़ने की। वो उसकी बातों मुस्कुराया था। मैंने तो सुन रखा है तुम बातें मनवाने के फ़न में ताक हो, फिर मना लो अपने बाबा को। अमल ने मुस्कुराकर सर हिलाया था। जी ऐसा ही है, मगर मुझे आगे पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, इसलिए अब वो अगर इजाज़त देते भी हैं तब भी शायद मैं आगे ना पढ़ती। हाँ, अब लग रही हो अमल। कुछ देर बाद उसने बखौर उसका चेहरा देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तकरीब कुछ सुनसान सी है, खाली खाली सी? इसने आसपास गर्दन घुमाकर जैसे किसी को तलाशे तो अमल बेतरह चौंकी। हाँ, हाशिम ने इसका चौंकना महसूस कर लिया था, इसलिए मुस्कुराता हुआ ज़रा करीब आया। क्यों, क्या वो हमेशा तुम्हारी खुशियों को इसी तरह बेमौल नहीं कर दिया करता? इस तरह गैर हाजिर रहकर तुम्हारे मन को ठेस नहीं पहुँचाया करता? अभी भी देखो अपने किसी काम में लगा होगा। तुम्हें नहीं लगता इस इंसान के ख्वाब में आखिर तकलीफ के सिवा कुछ नहीं लाते? अमल जो पत्थर इसकी बातें सुन रही थी आखिर में गड़बड़ाई। इसे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। हाशिम को इस सब का इल्म कैसे हुआ? इसका माउज़ जहन कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वली अहमद किसी का नहीं। अमल तुम भी ख्याल रखो अपना, वो रंग बदलता है, सांप है, एक इंतहाई खूबसूरत सांप जो मौका मिलते तुम्हें डस लेगा। साकत खड़ी अमल फटी फटी निगाहों से इसका चेहरा तक रही थी। और अभी वो तुम्हें तकलीफ देने वाले बहुत से काम करेगा। अभी तो तुम इस सब का आगाज़ समझो। वो कभी भी अपने मुकर्रर किए अहदाफ से पीछे नहीं हटा करता। वो और वो अभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो अभी भी वही करेगा जो अरसे से करता आ रहा है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसने संभल कर अपने हाथ सीने पर बांध देते। हाँ, अब वो कुछ कुछ पहली वाली अमल लग रही थी। तने नकोश लिए आगे वाले को सर निगाहों से देखती। क्या मतलब? ओ कॉमन यार, तुम एक समझदार लड़की हो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं ये बातें किस पस मंज़र में कह रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता कि आप ये सब बातें किस पस मंज़र में कर रहे हैं। ज़रा इन सारी ज़ोमैनी बातों की दुरुस्त सिया व सबाक के साथ पेश करें ताकि मैं समझ सकूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। हाशिम इसके बराह रास्त अंदाज पर एक पल को ठहर गया था। हाँ, तो इसने सिर्फ सुन रखा था कि अमल गुस्से में आगे वाले को सीधा कर दिया करती है। आज इसका अमली अंदाज भी देख लिया था इसने। लोग सच कहते हैं इसके बारे में। क्या तुम इसे पसंद नहीं करती? हाशिम ने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में इससे पूछा, मगर वो वैसे ही खड़ी रही हाथ बांध कर। क्या मैंने आपसे कहा है कि मैं इसे पसंद करती हूँ? लेकिन इसका मतलब क्या मैंने आपसे कहा है ऐसा? इसने तरस्ती से इसकी बात काट कर वही सवाल दोहराया तो हाशिम यकदम रुका। नहीं, फिर कहाँ से सुना आपने ये सब? लेकिन एक मिनट, इसकी संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था। यकीनन इस तरह के खराफात या तो आपने अपनी माँ साहिबा से सुनी होगी या फिर अपनी बहुत अजीज़ जान बहनों से। लेकिन वो क्या है ना हाशिम भाई कि आप अपने अंदाज बहुत ज़बरदस्त है। एक तो बहुत बाखबर शख्स, मगर अभी भी आप हमारी ख़ानदानी सियासतों को नहीं जानते। अभी आप इन औरतों की चालों को नहीं समझते। कुछ नहीं पता आपको हमारे बारे में।
एक लम्हे को मुस्कुरा कर उसका हौंक चेहरा दिखा। हम औरतों को ना एक दूसरे से जलने की बीमारी होती है आशिम भाई, हम ऊपर से जितना भी एक दूसरे से गले मिल लें, हंस कर बातें कर लें या फिर एक दूसरे के लिए जान तक छिड़क दें, लेकिन हमारे दिलों से बातें नहीं निकलती। हम हज़ारों गिले शिकवों को समेट कर अपने अंदर रखती हैं, और जब कभी मौका मिलता है तो हम एक दूसरे को डस लेती हैं। आपकी माँ जी या फिर बहनों को भी मुझसे कोई पुरानी ख़ार होगी, जिसको लेकर उन्होंने मेरे किरदार को जैसा चाहा पेंट पेंट कर दिया, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाशिम भाई, इसने गोया नाक से मक्खी अड़ाई थी। अगर वो ऐसी कोई बात मेरे बारे में कर रही है तो यकीनन इनकी भी कोई कमज़ोरी मेरे हाथ ज़रूर होगी, जिससे अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में यहाँ से लेकर वहाँ तक दूर स्टेज की जानिब उँगली से इशारा किया फैला दूँ, क्योंकि जिस ख़ानदान से वो है अमल भी इसी ख़ानदान की पैदावार है। क्यों, क्या ऐसा नहीं है? आखिर में मज़े से मुँह हँचकाकर पूछा तो आशिम ने दाँत जमा लिए, ये ज़रा चिकनी लड़की, मगर वो क्या है ना कि मुझे कोई शौक़ नहीं है ज़मीन में फ़साद फैलाने का, ये काम आपके घर की ख़वातीनों को ही मुबारक हो। आशिम का चेहरा हद तक से सुर्ख़ हुआ था। तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं लड़की कि मैं तुम्हारे साथ क्या-क्या कर सकता हूँ, अभी जानती नहीं हो तुम मुझे। आपको कौन नहीं जानता हाशिम भाई, वो एक लम्हे को मुस्कुराई थी, मगर शायद अभी आप वली को नहीं जानते। अगर बाबा को किसी भी किस्म की तकलीफ़ आपने मेरे ज़रिए या फिर किसी के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की, जो हाल अभी नफ़ीस का है ना, कल आपका भी वो होगा। यहाँ उँगली उठाने से पहले अपने बारे में 100 दफ़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि वली अहमद का तो फिर आपको पता ही है। आइंदा अगर आपने किसी भी तरह से मुझे हरासा करने की कोशिश की तो मैं इतनी नरम से तंबिया आगे से हरगिज़ भी नहीं करूँगी, समझे आप? बहुत बेरहमी से कहकर इसने अपना सरापा फेरा था। हाशिम साकित सा इसकी पुश्त को देखा गया। इसे आज अंदाज़ा हुआ था कि अमल ज़मान किस शय का नाम है। कई दिन की गैर हाज़िरी के बाद वली आज हवेली आया था, मगर इसका लिबास कहीं से भी थका-थकाया नहीं लग रहा था। बहुत निखरा-निखरा सा सफ़ेद लिबास में मलबूस लॉन की नरम सी धूप में चलता हवेली के दाखिली दरवाज़े की जानिब बढ़ रहा था। ज़मान और बीजान लॉन में सुबह की धूप से लुत्फ़अंदाज़ हो रहे थे और अपने कदम फेर कर इधर ही चला आया। अस्सलाम वालेकुम, इसने सलाम करते हुए ज़मान के साथ वाली कुर्सी पर सँभाली थी। वालेकुम सलाम, काम हो गया तुम्हारा? ज़मान ने आराम से पूछा। वो इन्हें पहले ही मुतमईन कर चुका था। बीजान इसके लिए चाय बनाने लगी थी। जी सरदार बाबा, काम हो गया है, सॉरी आपको पहले नहीं बता सका। दरअसल इतनी अचानक काम आ पड़ा कि मुझे मौका ही नहीं मिला आपको आगाह करने का। इसने मुस्कुराकर चाय का कप बीजान के हाथ से लिया। इस लड़के को आपने बिगाड़ा है ज़मान, देखें इसे ज़रा, 24 में से 25 घंटे काम करता रहता है, खुद का कोई होश नहीं है इसे। ना मैं पूछती हूँ कि सारी ज़िंदगी क्या बस इस काम के सहारे ही गुज़ारनी है तुमने? इनकी नरम सी ख़फ़ी पे ज़मान मुस्कुरा रहते हुए वली एक बार फिर से इन्हें समझाने में हलकान होने लगा था। बीजान, मैं रखता हूँ अपना ख़्याल, देखिए बिल्कुल ठीक-ठाक तो लग रहा हूँ। एक नज़र खुद की जानिब इशारा करके कहा तो बीजान की ख़फ़ी ज़रा-सा मिटी। मैं तुम्हारा इस ख़्याल की बात नहीं कर रही वली, शादी कब करोगे? देखो बख्तियार और निसार खुश हैं अपनी-अपनी ज़िंदगी में, कल उनकी औलादें हो जाएँगी तो किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। सब अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और तुम तन्हा रह जाओगे। शादी कर लो बच्चे, क्यों ज़ुल्म करते हो खुद के साथ? वो एक पल को खामोश सा हो गया। बख्तियार और निसार की ज़िंदगी का भला इसकी ज़िंदगी से क्या मुकाबला था? वो दोनों बाइज़्ज़त तरीके से इस माशरे में पैदा हुए थे। बचपन से लेकर आज तक जिस इज़्ज़त से दुनिया इन दोनों को देखती थी, वली कितनी भी कोशिश कर लेता वो इज़्ज़त कभी नहीं पा सकता था, कभी भी नहीं। इसने हल्का सा मुस्कुरा कर बीजान को देखा। क्या फ़र्क पड़ता है बीजान, वो दोनों खुश हैं अपनी ज़िंदगियों में, खुश ही रहें, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। कोई मसला नहीं है बीजान, लेकिन मैं किसी और की ज़िंदगी को अज़ाब में नहीं डालना चाहता। वो आएगी मेरे साथ रह लेगी, मगर मेरी ज़िंदगी में खड़े मसलों से शायद जल्द उकता कर भाग जाएगी। ऐसे में बेहतर नहीं है कि मैं सारे किस्से को शुरू ही ना करूँ। इसकी बात पर ज़मान संजीदगी सीधे हो बैठे थे। देखो वली, ना तो तुम वो हो और ना ही मैं, यहाँ के लोग अब वैसे हैं, तुम भी बदल गए और ये लोग भी। अब वैसी सोच किसी की भी नहीं रही। तुम कहो किसी को पसंद करते हो, कोई है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर सारे मसलों को सुलझा सके, तुम्हें सँवार देगी? कोई ना कोई तो होगी वली। सारी आँखों के कांच में हल्की सी सुर्खी उभरने लगी थी। ऐसे सांचे पर तो बस एक ही परी याद आती थी, मगर नहीं, वो इसकी ज़िंदगी को अज़ाब नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं। ऐसी कोई नहीं है सरदार बाबा, मुझे नहीं करनी शादी, आप दोनों के साथ रहूँगा, आप दोनों का ख़्याल रखूँगा मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसने मुस्कुरा कर कहा और फिर उठ खड़ा हुआ। आप दोनों का साथ मेरे लिए हर सांस से ज़्यादा अज़ीज़ है, बस आप दोनों परेशान नहीं हो। मैं चलता हूँ। फिर आगे बढ़ गया। ज़मान और बीजान पीछे तन्हा रह गए। वो ऐसा क्यों करता है हमेशा ज़मान, क्यों अपने हिस्से की खुशियाँ लेने की कोशिश नहीं करता? वो भी
बीजान की आंखों में पानी चमक रहा था। ज़मान ने गहरा सांस लिया। मुझे नहीं पता ज़मानी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वली को बिल्कुल नहीं जानता। वो क्या सोचता है, क्या करता रहता है, मामलात को कैसे हैंडल करता है। कभी कभी मुझे वाकई अजनबी सा लगता है। दूर जाते वली को देखते ज़मान ने बहुत आहिस्ता से कहा। बीजान ने ठंडी सी आ भरी थी। अब वो दोनों दूर जाते वली को यस से देख रहे थे। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो चेहरा जो कुछ देर पहले बहुत नरम गरम से तासुरात से सजा था यकदम ही सपाट हो गया, पत्थर जैसा सख्त। इसने कमरे में दाखिल होकर सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की शीशी ढोया, फिर बाहर आकर किचन के बाहर पड़े डस्टबिन में फेंक दी। दोबारा कमरे में आकर चेन को इसने एक पल के लिए हाथ में लेकर देखा था, फिर इसे मुट्ठी में कैद करके अपनी जेब में डाल ली। इसकी कोई एक चीज़ तो पास होनी चाहिए, नहीं तो वो सांस कैसे लेगा। ख़यालात से बचने के लिए इसने कदम वॉशरूम की जानिब बढ़ाए। वॉश बेसिन से ठंडे यख पानी के छींटे मुँह पे मारे, फिर झुककर बेसिन के किनारों को थामा। एक पल को चेहरा उठाकर खुद को आईने में देखा। हल्के से गीले बाल माथे पे पड़ रहे थे और निस्वारी आंखें हल्की सी सुर्खी के ज़ेर असर चमक रही थी। इसने चंद लम्हों को आंखें मूंद कर जलती रूह को सहारा दिया, फिर स्टैंड से तौलिया खींचता और बाहर की जानिब बढ़ा आया। अमल इसी पल अपने कमरे से बाहर निकल जीने से उतर रही थी। इसने सादा सी कमीज सलवार पर शॉल खुद के गिर्द लपेट रखी थी। ढीले से बंदे बाल कमर पर बिखरे थे और अंदाज ऐसा था कि अभी अभी सोकर उठी है। किचन की उठा पटक देखकर वो उधर ही चली आई। नूरा और शकीला दोनों काम में मसरूफ थी। इसे देखकर नूरा उसके पास चली आई। बीबी नाश्ता करेंगी? हाँ बस चाय दे दो, अभी नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा, इसने कहा, फिर एक तरफ लगी कुर्सी पे जा बैठी। बीबी जी को चाय मैं दे दूंगी। नूरा तू जाकर बाहर रखा डस्टबिन खाली कर बाहर, फिर कचरा उठाने वाला चला जाएगा और कल की तरह कचरा आज भी यहीं पड़ा रह जाएगा। हाँ तुम जाओ नूरा, पहले ये काम कर लो। इसने सर हिलाकर इजाज़त दी तो वो बाहर की जानिब बढ़ गई। शकीला ने जल्दी जल्दी चाय बनाकर उसके सामने रखी तो उसकी सोचती नज़रों ने चाय को देखा। बीबी ये किसी कचरे में फेंक दी थी शायद गलती से। कुछ देर बाद नूरा हाथ में कुछ लिए अंदर आई तो उसने ऐसे ही रुख फेर कर देख लिया और वो पत्थर की हो गई कांसनी रंग के सियाल से भरी शीशी। कुछ देर वो ऐसी ही साकित सी बैठी रही, फिर एकदम उठी। नूरा के हाथ से शीशी झपटी और भागती बाहर आई। शॉल एक जाने से ढलक कर पीछे को गिर रही थी, बाल कमर पर किसी आबशार की तरह बहते जा रहे थे। इसने इसके कमरे का दरवाज़ा धार से खोला। वो जो अपनी स्टडी टेबल पर रखी किसी फाइल झुककर को देख रहा था, ये एकदम सीधा हुआ। वो वहीं चंद पल दरवाजे में हँसता रही, फिर एकदम आगे बढ़कर ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पे मारा। वो जो इसके आनन-फानन आने से अब तक नहीं संभला था, साक़त रह गया था। अमल तेज़ होने के तनफ़ुस के साथ दाँत पर दाँत जमाए इसे देख रही थी। नफ़रत करती हूँ मैं आपसे वली अहमद। इसकी आँखों में जमा होते आँसू एकदम ही इसके चेहरे पे लढ़क रहे थे। गला मज़ीद आँसू रोकने की वजह से दुखने लगा था और दिल तो गोया अंदर तक की पर्ची से ज़ख्मी कर दिया था। वली ने अपना चेहरा इसकी जानिब घुमाया और ज़ोर से एक हाथ में शीशी को कैद हुए थी और दूसरे हाथ को मिट्टी में बंद कर रखा था, जो वली को थप्पड़ मारने के बायस सुर्ख पड़ रहा था। मैं आपसे नफरत करती हूँ वली, बहुत नफरत करती हूँ मैं आपसे। सुना आपने, आखिर में चिल्लाकर कहा तो वली ने इसकी शैत रंग आंखों को बेरहमी से देखा। करें शौक से करें नफरत, मोहब्बत करने को मैंने आपसे कभी नहीं कहा था। इसकी दिब्बी सी आवाज़ बहुत सर्द थी, अमल की हड्डियों तक को जमा देने वाली। आप किसी चीज़ के काबिल नहीं थे वली, आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं थे। मैंने गलती कर दी, मैंने गलती की आपको सबसे अलग समझ कर। आप सब जैसे हैं वली, आप भी इतने ही फत्ता बेरहम है जैसे इस ख़ानदान का हर मर्द है, मगर अब बस। इसने बहते आंसू को बेदर्दी से रगड़ा और वली वैसे ही साकत सा इसे देखा गया। अब बहुत हो गया, अमल ने खुद को बहुत गिरा लिया, मगर अब बस। अब अमल किसी के लिए नहीं झुकेगी, अब मैं कभी किसी के लिए नहीं रहूँगी, कभी भी नहीं। इसकी आवाज़ और आँखें में लरस रह गई थी। आंखों से बहते आंसू अब तक तेज़ी के साथ गर्दन में लड़क रहे थे। और अगर आइंदा आप मेरे लिए कभी भी फ़िक्रमंद हुए तो मैं आपकी जान ले लूँगी वली। आज से अमल ज़माना आपके लिए मर गई है, मर गई हूँ मैं आपके लिए आज से। ये सिर्फ एक तोहफ़े का दुख नहीं था जो इसे इतना रुला रहा था, ये तो कई सालों के जमे खुद ज़ख्म थे जो अब वली की बेतनाई की हद्द से पिघल पिघल कर इसी आंखों के रास्ते बाहर को गिर रहे थे। मगर दूसरी जानिब खड़ा वली वैसे ही खड़ा रहा, बिना किसी तासुर के, बिना किसी शनासाई के। अजनबी सा चेहरा लिए आज इसने खुद को अमल के लिए अजनबी कर लिया था। वो नफ़रत से इसे देखती आंसू रगड़ती बाहर को भागी। शाल आपके पूरी ढलकी ज़मीन को छू रही थी। इसने बाहर निकलकर शीशे को डस्टबिन में फेंका और ऊपर भागती गई। नूरा और शकीला किचन के दरवाजे में खड़ी बेयकीनी से इस पर जाता देख रही थी।
इसने आराम से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया, फिर स्टडी टेबल तक चला आया। वो इस सब के लिए पहले से तैयार था, इसे अमल को खुद से बस ज़ब्त करना था और वो इसने कर दिया था। खुद को शाबाशी देता हुआ फिर से स्टडी टेबल पर रखी फ़ाइल को झुककर देख रहा था। दूसरी जानिब अमल अब तक दरवाज़े से लगी रो रही थी। इसका दिल जो बहुत सी बातों में पहले ही ज़ख्मी था, अब दर्द से फटने लगा था। फिर वो दरवाज़े से लगकर बैठती चली गई। आँसू बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और हल्की-हल्की सिसकियों की आवाज़ सारे कमरे में सुनाई दे रही थी। 3 रातें कबल इस लड़की की ये मजाल कि मेरे सामने ज़बान चला सके, और वो भी इस गाली वली के लिए। बड़ा नाज़ है ना इसे वली पर। देखते कि ये नाज़ और कितने दिनों तक कायम रहता है। और वो गाली वली इसने सुलगते वजिद को स्याही में डूबी खिड़की की जानिब फेरा। बाहर दूर-दूर तक फैले सब्ज़ात पर खामोशी छाई हुई थी। इसे तो मैं देख लूँगा, ऐसी जगह ज़रब लगाऊँगा कि सारी ज़िंदगी अपने ज़ख्म सहलाता रहेगा, मगर सुकून, इससे कभी सुकून नहीं आएगा। एक सिगरेट कागज़ में लबों से लगाई, फिर हवा में गायब होते धुएँ को सोचती निगाहों से देखे गया। देख लूँगा मैं हर एक को, ज़रा से ताल्लुकात क्या आ गए हैं। ये लोग दुश्मनी के मुकाबले पर मुझे अपने बराबर समझने लगे। अभी जानते नहीं हाशिम हुसैन को ये लोग खाक ना कर दिया तो नाम हाशिम नहीं। इतने सर झटका था, फिर 2 उँगलियों में सिगरेट फँसाकर कमीज़ की जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला, चंद बटन दबाए, फ़ोन को कान से लगा के वो सब ज़ारा की महव तारीकी को देखता रहा। हसन शाह, तुम्हारी ताख़ीर मेरी समझ में हरगिज़ नहीं आ रही, लेकिन अब बहुत हो गया। अब हाशिम अपने मामला खुद तय करेगा, तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं मुझे। कहकर इसने आगे वाले की बात सुने बगैर ठक से फ़ोन रख दिया और फिर कुछ सोचकर इसने एक और नंबर डायल किया। राजा सरदारपुर वाले कबाड़ खाने को तैयार रखो, किस दिनों में एक लड़की को वहाँ लाकर डालना है। और हाँ, ज़फ़र से कहो कि तैयार रहे, माल बिल्कुल इसी के हिसाब का है। आगे वाले की चंद पल सुनने के बाद इसने फ़ोन कान से हटाया, फिर सिगरेट का एक भरपूर कश लेता हुआ धुआं फ़िज़ा में छोड़ने लगा। ज़हर कतरा कतरा इसके अंदर उतरता जा रहा था। दूसरी जानिब इस सारे किस्से से बेखबर वली डेरे पर रात की तारीकी में काम कर रहा था। जब से इसे पता चला था कि हाशिम इसकी कमज़ोरी जानता है, तब से इसे एक पल का चैन मुयस्सर नहीं आया था। फिर भी अपने तमाम तर ख़दशात को बार-बार झटकता वो बस काम पर तवज्जो दे रहा था। हाँ, बस काम पर। अपनी और हवेली वालों की ज़िंदगियाँ हाशिम और हुसैन जैसे नासूरों से पाक करने वाले काम पर। यकायक इसका फ़ोन बजा तो उसने टेबल पर धरी बहुत सी फाइल्स के ऊपर हाथ मारा। इसका फ़ोन किसी फ़ाइल के नीचे दबा हुआ था। एक फ़ाइल को हटा के इसने देखा तो जलती बुझती स्क्रीन पर हसन शाह का नाम, वो भी रात के इस पहर। देखकर इसके माथे के बिलों पर इज़ाफ़ा हुआ। कहे सर, बहुत आहिस्तगी से कहकर इसने सेठ की पूँछ से टेक लगाया। हाशिम ने मुझसे राब्ता मुंतक़िल कर दिया है वली। अगली बात सुनने के बाद वो एकदम सीधा हो बैठा। एक ही सुकून था इससे कि हाशिम जो भी करेगा, कम से कम इसका इल्म इससे हसन के ज़रिए होता रहेगा। मगर जो इस वक्त हसन कह रहे थे वो बहुत अलार्मिंग था। क्या मतलब, क्या इसे शक हो गया है? शायद, क्योंकि मेरी ताक़त के बायस ज़ाहिर है इसने कुछ न कुछ तो अक्स किया होगा। मगर खैर, अब तुम्हारी बहुत बहुत मोहतात रहना वली, क्योंकि अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं हूँ। अब हाशिम पर तुमने बराह रास्त चेक करना होगा, और अगर अगर इसे भंगना भी पड़ गई तुम्हारे इस चेक की तो वो बहुत बुरा होगा। इसकी परेशानियाँ सवा होती जा रही थी। मैं ख्याल रखूँगा सर, मगर आप भी अपना ख्याल रखिएगा और असगर से भी कहिएगा कि मोहतात रहे, क्योंकि हाशिम किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। मेरी फ़िक्र छोड़ो, तुम बस अपना और हवेली वालों का ख़्याल रखो। और हाँ, वो जो लड़का मोहसिन है ना, जो डबल एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, इसे कहो कि कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि हाशिम अभी तुम्हारे आस-पास काम करते हर बंदे का ताल्लुक खुद से जोड़ेगा, और गद्दारी को सूंघना इसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। इसने चंद पल के लिए आँखें बंद की। सब कुछ उल्टा होता हुआ जा रहा था। ठीक है, मैं देखता हूँ सब कुछ, लेकिन सर, क्या कभी ऐसा हुआ कि हाशिम ने जिस चीज़ का इरादा किया हो, इसे पा ना सका हो? इसका सवाल बहुत अजीब-सा था, मगर हसन शाह ने दूसरी जानिब गहरा साँस भरा था। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाशिम ने कोई मनसूबाबंदी की और वो मनसूबा इस पर उल्टा पड़ गया हो। वो एक बहुत खाक और बारीक-बीन सा आदमी है, कभी भी किसी छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता वो। और मेरी एक बात कभी मत भूलना कि तुम हाशिम के मुकाबले पर हो, कभी भी नहीं। इसे हल्का लेने वालों ने हमेशा नुकसान उठाया वली। इनकी आवाज़ में ऐसी सनक बह रही थी कि इसकी हड्डियों में बर्फ़ फैलने लगी। तनफ़्फ़ुस तेज़ हो गया। क्या हाशिम की कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं जो हसन के सर के मैं इसे दबो सकूँ? इस थक-हार का एक फिर इसे किसी कुर्सी के पुश से टेक लगाया था। कमज़ोरी होती है वली, हर एक की होती है, जानते हो। बड़े-बड़े खुदाई का दावा करने वालों को कैसे ज़वाल आया था। रात की स्याही में हसन की आवाज़ खुलने लगी थी। इनकी अपनी गलत कार्यों की वजह से, इनके अपने तकब्बुर और घमंड
ने इन्हें तख्ते तक पहुँचाया था। जो जितना गलत होता है और जितना बड़ा ज़ालिम होता है ना वली, खुदा इसे इतनी हक़ीर शय से मौत दिया करता है। ये खुदा की ज़मीन है और उसकी नज़रें ना ज़ालिम से हटती हो ना मज़लूम से। तुम इस कहानी के सबसे मज़लूम किरदार हो वली, और हाशिम के सामने एक इंतहाई कमज़ोर से दुश्मन भी। मगर अपनी ताकत मत भूलना। अगर तुम मस्जिद के बाहर टहलते कुत्तों से बच गए थे, अगर तुम कबाड़ खाने में सारी रात एक जानवर से मुकाबले पर जीत गए थे, और अगर तुमने वो स्याह रंग सर्वाइवर कर ली थी, तो तुम इससे बड़ा सख्त जन और तुमसे बड़ा सर्वाइवर इस ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें हाशिम से जीतना होगा, हर कीमत पर, हर हाल में। इनके चंद जुमलों ने जैसे इसके अंदर फैली बेचैनी को एकदम से स्लिप कर लिया था। खामोश एक लम्हे को सारी कायनात खामोश हो गई थी। इसने आहिस्ता से फ़ोन कान से हटाया, फिर सामने टेबल पर रख दिया। हाँ, वो कैसे भूल गया कि उस कहानी का सबसे बड़ा सर्वाइवर है। वो बच गया है और उसे यहाँ भी बचना ही होगा। रात की स्याही में एक बार फिर काफूर की बू तहलील होने लगी थी। आज दरवाजे के साथ लगकर बेखबरी की नींद सोती अमर एक झटके से उठी। सीधी हुई तो लगा कमर कड़ गई है। कराते हुए उसने हाथ पांव सीधे किए, फिर जैसे ही बाहर गिरती शाम की नई लीगों पे रोशनी पे निगाह पड़ी, वो झटका खा कर उठी। जल्दी से आगे बढ़कर साइड टेबल पर रखी क्लॉक में टाइम देखा तो एक पल को घबरा सी गई। शाम हो गई थी। मैं इतनी देर सोती रही, ओ खुदाया। इसने कसल मंदली से कदम ड्रेसिंग टेबल के रूम की जाने बढ़ा, फिर अगले ही लम्हे वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी। इस तरीशुदा लटकते कपड़ों को देखते एक पल को उसकी सोच भटकी थी। थप्पड़, वो भी वली को। उफ़ अमल, तुम पर क्या ज़रूरत इतना जज्बाती होने की। मगर एक मिनट ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, जो तोहफ़ों की बेकदरी करे। इन्हें तो उल्टा लटका कर दुर्रे मारने चाहिए। इसने दुखते सर को 2 उँगलियों से दबाया। पहले शाज़िया, अमीना, फिर वो ज़ाहिर, हाशिम और अब वली। इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी इतना सब कुछ सहने के बाद। इसलिए हमेशा का जमा हुआ गुबार वली पर निकाला था। अपने तोहफ़े की बेकदरी याद हुई तो उसकी आंखें फिर से भर आईं। वली पे इतना गुस्सा चढ़ा था कि अगर वो सामने होता तो वो गमला उठाकर इसका सर पे दे मारती। किसी की ऐसी बेकदरी करते हैं? तुमने हमेशा मुझे तकलीफ दी वली, मगर अब बस बहुत हो गया। एक सूट निकाल के उसने ज़ोर से अलमारी का पट बंद किया। आज से तुम्हारा ज़िक्र अमल की ज़िंदगी में बंद हो गया है। और फिर वाशरूम की जलन बढ़ गई। मगरिब की नमाज का वक्त तंग हो रहा था। बाहर फैलता नीलुओं अंधेरा वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। शावर लेकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी फीकी सी ज़िंदगी के बरक्स हवेली में खूब रौनक लगी हुई थी। इसने मुँह से कर कमरे के दरवाजे बंद किया और फिर रैंकिंग तक आई। चिकना कर देखा तो लाउंज में सभी बुरा-जमान थे। सामने के सोफ़े पर निगार बेगम के साथ अर्जुमंद ताई थी और बराबर सोफ़े पे बैठी बीजान से खुशगवार अंदाज़ से बातें कर रही थी। इसे छिपा हुआ ये निगार ताई और अर्जुमंद ताई को एकदम क्या हुआ है? इसकी नज़रें फिसल कर ज़रा आगे को बढ़ी थी। दूसरे सोफ़े पे अमीना, शाज़िया, नाज़िया मज़े से बातें करने में मसरूफ़ थी। इनकी तो आपस में बनती नहीं थी। फिर अब ये क्या हो रहा है? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यकदम इसकी नज़र दाखिल दरवाज़े से अंदर आते हुए मर्दों पे पड़ी थी। हसन ताया के साथ इनके दोनों बेटे थे, नज़ीर और इर्शाद। हाँ, नफ़ीस इनके साथ नहीं था। इन्हीं के पीछे अब अख्तियार और निसार भी अंदर दाखिल हुए थे। इसकी पेशानी शक्ल आलूद हुई। कुछ तो था जो इसे खटक रहा था। जल्दी से होठों को आपस में मिस करके वो ने अंदर जमा होती बेचैनी को दबाया। फिर दोबारा कमरे के अंदर आ गए। एक पल को रुक कर सिंगार मेज़ पे देखा खुद को। इसने वही सख्त लिबास तन कर रखा था जिसके शफूदा दुपट्टा इसे हमेशा हमेशा तंग किया करता था। इसने हाफ बंधे लब बालों से फिसल कर गिरती लट को कान के पीछे अड़सा। इसका दिल अजीब से वहमों का शिकार होने लगा। इसने खुद को कंपोज़ किया, फिर से बाहर जाने के लिए बढ़ी, मगर फिर ठहर गई। जाने की उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी थी। कुछ तो था जो इसे रोक रहा था। इसी पर बीजान ने इसी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर फिर मुस्कुराकर अंदर चली आई। करीब आकर इसके चेहरे पर झूलती लट को प्यार से कान के पीछे अड़सा, फिर इसके दमकते चेहरे पर मुस्कुराकर हाथ फेरा। है, पता है तुम्हारा रिश्ता है नफीस के लिए। इसका दिल एकदम से धड़कना भूल गया। उसने बेयकीनी से बीजान का नरम मुतमईन चेहरा देखा। तुम बहुत पसंद हो नफीस को, अर्जुमन भाभी को और नाजिया से तो तुम वैसी भी तुम्हारी बहुत दोस्ती है तुम्हारी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मुझसे दूर नहीं जा रही, यही रहेगी मेरी नज़रों के सामने। इसके हलक में कुछ अटका था। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि इसे साथ लेना मुश्किल हो गया। क्या अगरजान राज़ी हैं इस रिश्ते के लिए? इसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आ रही थी, सहमी हुई, खौफज़दा। लो, वो क्यों राज़ी नहीं होंगे भला इस रिश्ते पे? इनके इनके तो भाई का बेटा हमेशा अजीज़ है इन्हें तुम्हारी वजह से।
उन्होंने इसे कंधे पर झूलता दुपट्टा लेकर सर पर डाला तो एक पल को रुक सी गई। मतलब ये कि तुम्हारा रिश्ता बहुत बचपन में तय कर दिया था घर के बड़ों ने नफीस के साथ। अब तो बस रस्मी सी कार्रवाई है बेटा। सब इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी हैं। इसकी कोई सांसें जब्त कर रहा था। बचपन से तय रिश्ता। इसे पता था कि जब तक लड़के वाले खुद रिश्ता ना ले तब तक इनके यहाँ रिश्ते के बचपन के रिश्ते ख़त्म नहीं हुआ करते। इसे बेसाख्ता चक्कर आए थे। मुझे कभी कुछ नहीं बताया गया। मेरा रिश्ता नफीस से था। इतनी बड़ी बात आप लोग मुझसे कैसे छुपा सकते हैं बीजान। इसकी आवाज़ में बेपनाह सदमा था। इसे इतने साल अंधेरे में रखा गया और अब जब वो हकीकत की रोशनी में लाकर खड़ी की जा रही थी, ये जान लेने की अजियत कितनी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ पहले से लड़की को नहीं बताया जाता बेटे। मयूब समझा जाता है। अच्छा तुम ज़्यादा बातें मत करो। सब बड़े नीचे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। अंगूठी पहनाने आए हैं तुम्हें। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मुझे कोई इत्तला दिए बगैर भाभी वाले अपने तयशुदा वक्त के तय मुताबिक ही आए। आओ चलो सब तय इंतज़ार कर रहे हैं बेटा। बड़े को इंतज़ार नहीं करवाया करते इतना। इसका ढलता दुपट्टा दोबारा इसके सर पे डाला और इसे हाथ से पकड़े बाहर ले आए। अमल तो गोया रेत का मुजस्मा बन गई थी। इसे लगा कोई इसे हाथ लगाएगा तो वो ढह जाएगी। ज़हीनों से उतरते इसने बहुत से लोगों की नज़रें खुद पर महसूस की थी, मगर आज इसकी हिम्मत नहीं थी किसी को भी नज़र उठाकर देखने की। वो खामोशी से धीमे धीमे कदम उठाती ठंडे जीनों पर चल रही थी। वो ठंडे जीने नहीं, बर्फ़ के तोते थे जिनकी ठंडक इसके रग व बह में उतरकर इसकी हड्डियों तक को जमा रही थी। बीजान आगे थी, अब वो इनके पीछे। इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा, होले होले लड़ता दिल। इसका दिल चाहे यहाँ से भाग जाए, मगर आगा जान के मुस्कुराते चेहरे पर इसकी उठी निगाह कोया टिक सी गई। वो कितने मुतमईन और खुश थे, तो क्या अब कोई गुंजाइश रह गई थी इनकार करने की? क्या इसके पास इनकार करने का हक रह गया था? ये जो हक हम लड़कियों को जताए नहीं जताते तो इन्हें खामोश स्लिप क्यों कर लिए जाते हैं? इसने लाउंज में आकर सबको सलाम किया, फिर अर्जुमन और निगार ताई के दरमियान जा बैठी। वही मसनूइयों से प्यार और खोखली मुस्कुराहट है। इसका दम घुटने लगा। कोई ले जाए इसे यहाँ से। वो नहीं करना चाहती थी नफीस से शादी। कोई तो उसे सुन ले, मगर कोई कैसे इसे सुन सकता था? ये काम तो सिर्फ एक ही बंदे को आता था। ये तो सिर्फ एक वली ही था जो इसकी गिरती उड़ती पलकों की ज़बान को समझता था। हाँ, ये वही तो था जो इन अल्फाजों को सुन लिया करता था, जो वो कहती ही नहीं थी मगर वो कहीं नहीं था। इसने आसपास गर्दन घुमाकर इस बेरहम से इंसान को तलाशा, मगर वो होता तो नज़र आता ना। इसके अंदर पहली खामोशी बढ़ने लगी थी। लाउंज में सब एक बार फिर इसकी बातें कर रहे थे, मगर अजीब बात थी कि इसे किसी की बातें समझ नहीं आ रही थी। अब अर्जुमन ताई ने इसे दोनों गालों पर प्यार कर रही थी। इसने एक नज़र फिर से लाउंज में बैठे हर शख्स पर डाली, मगर इसके बरक्स सब बहुत खुश थे। अर्जुमन ताई ने इसका दूधिया हाथ थामा तो सब एक साथ मुस्कुराए, सिवाय इसके। वो जैसे बहुत बुरी तरह चौंकी थी। आज से अमल हमारी बेटी है ज़मानी, अब ये हमारी अमानत है। इसका बहुत ख्याल रखना है। हाँ, उन्होंने अंगूठी इसकी उँगली में पहनाकर एक बार फिर इसके रेशमी बालों को चूमा था। वो मोम का मुजस्मा बनी खामोशी से अपनी उँगली में कैद अंगूठी को देखे गई। जी भाभी बेफ़िक्र हो जाइए, यह आप ही की बेटी है। बीजान और अर्जुमन गले मिल रही थी। आओ ज़मान, हम भी अब से नए रिश्ते में बंध गए हैं। हसन उठकर ज़मान के गले लग गए। फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। इसके भाई हसन के बेटियों से बलखैर होने लगे। सारे लाउंज में खुशखुशियों की अजीब सी लहर उठी थी। कहक में आने वाले दिनों के ख़यालात और नए जुड़ने वाले रिश्ते ने गोया सबको एक नया मौका दिया था खुशी का। नूरा और शकीला दोनों जल्दी-जल्दी दरमियाने टेबल पर मिठाइयाँ सजाने लगी। अमल खाली-खाली नज़रों से इन सौगातों को देखे गई। इसी पल वली अंदर दाखिल हुआ था और एक लम्हे को लाउंज का खुशगवार सा माहौल देखकर बेसाख्ता ठहर भी गया था। इसकी निस्वारी नज़रें अमल पर फिसली थी, जो सर उठाए बेतासुर निगाहों से इसे देख रही थी। वो इसकी निगाहों से साकित हुआ था। मुझे यहाँ से ले जाएँ वली, यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं, मुझे यहाँ से ले जाएँ वली। खामोश कलाम थी जिसने वली अहमद को साकित व जामिद कर दिया था। दिल को एक पल को सुकून कर फैला था। वो किसी और होने की जा रही थी। हाँ, वो इसके हाथों से फिसल रही थी, मगर नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। वो इसकी खुशियों के दरमियान में कभी नहीं आएगा। हरगिज़ नहीं। अमल को लगा वो अभी भी आगे आएगा, अभी उसे हाथ से पकड़ कर इन सब के दरमियान से निकाल ले जाएगा। हाँ ठीक है, वो इससे नाराज़ थी, मगर वो कभी इस नफीस के साथ शादी नहीं करने देगा। बस वो आ गया था तो अब गम किस बात का? इसके दिल पे बेसाख्ता बोझ रखने लगे थे, मगर फिर अगले हिला में वो साकित हो गई। सामने खड़े वली की गर्दन पे गिल्टी उभर कर मद्दूम हुई। उसने अपना रुख कमरे की जानिब फेर लिया। अमल की शहद रंग आंखें फैल गईं। वो इसे छोड़कर जा रहा था। नहीं वली, रुक जाए। वो इसे रोकना चाहती थी, मगर आज वो नहीं सुन रहा था। इसकी नज़र अब तक इसकी पुष्ट पर जमी थी। वो उनकी हिद्दत बखूबी महसूस कर रहा था, मगर वो इसे पलट कर नहीं देखेगा, क्योंकि इसे पता था अगर इसने इसे पलट कर देखा तो किसी के हक में बेहतर नहीं होगा। और इतने अरसे में पहली बार अमल की आँख से आंसू फिसला था। दर्द का आंसू, अपनी जान से प्यारी मोहब्बत को खो देने का आंसू। आज
भाग दौड़ ऑफिस के अंदर सिर्फ सांसें बाकी रह गई थी और ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ज़िंदगी